Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajada student. Today I am taking the another questions related to class 10th mathematics, chapter number 7, quadrilateral theorem section. What is the meaning of the theorem section, student? In the previous video, we seen about the 8.1, 8.2 video number 1 related to chapter number 7 quadrilateral theorem number 1st, theorem number 2nd, that means 8.1, 8.2. In video number 2, 8.3, 8.4. Okay student, now we taking the next theorem, theorem number 5. In a parallelogram, opposite angle are equal. We have to prove in n parallelogram. What is the meaning of this sentence, student? अगर जो हमारे पास कोई एक पैरेललोग्राम है, पहले मुझे बताइए स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन ऑफ अ पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम होता क्या है? अ शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटर. क्वाड्रिलेटर तो होगा ही ए बी सी डी. A shape of a quadrilateral in which opposite sides are equal. AB equal to CD and AB parallel to CD. Here AD parallel to BC and AD equal to BC. फिर से मेरे साथ बोलिए, opposite sides are equal and parallel to each other. We have to prove. Today we have to prove opposite angles are equal. That means we have to prove this angle will be equal of this. Similarly, this angle will be equal of this. Okay student, आपको क्वेश्चन समझ आया? In an parallelogram, एक पैरेललोग्राम है, मुझे प्रूव करना है opposite angles are equal. Okay student, थ्योरम ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट स्टेटमेंट. जब भी आप पेपर में क्वेश्चन करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट दैट मीन्स द स्टेटमेंट. व्हाट इज द मीन ऑफ द स्टेटमेंट? क्वेश्चन अंडर इन्वर्टेड कॉमा. स्टेटमेंट कंप्लीट. नाउ फर्स्ट पॉइंट आफ्टर स्टेटमेंट गिवन दैट. क्या दिया है स्टूडेंट? फर्स्ट पॉइंट होता है गिवन दैट, सेकेंड पॉइंट टू प्रूफ, third point construction and fourth point last point and most important point of each and every theorem, that means a proof. Okay student, कैसे करेंगे थ्योरम को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा. क्या दिया है? ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर. ए बी सी डी इज अ parallelogram. Okay student, ABCD is a parallelogram in which opposite sides are equal. AB equal to DC and AB parallel to DC. First one. And comma student, opposite sides are equal, that means AD equal to BC and AB parallel to BC. Basic property of parallelogram. In parallelogram, opposite sides are equal and parallel to each other. Okay student, we have to prove. मुझे क्या प्रूव करना है? Opposite angles are equal. That means angle B will be equal of angle D, and from this side angle A will be equal of angle C. Okay student, next कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या कंस्ट्रक्शन करा. वी जॉइंट, ज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट, A to C. जॉइंट A C. नेक्स्ट एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट, दैट मीन्स प्रूफ. ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, कैसे प्रूव करेंगे?
अगर जो हमको पुराने वीडियो देखे हैं तो हमको समझ आ गया है इन दोनों ट्राइंगल को सर इक्वल एंड सिमिलर प्रूव करेंगे। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द इक्वल एंड सिमिलर? दैट मीन्स अ कॉन्जुरेंट। सबसे पहला होता है राइट एंड साइड, सेकेंड नंबर पे साइड एंगल साइड, थर्ड नंबर पे एंगल साइड एंगल, फोर्थ एंगल एंगल साइड एंड लास्ट वन साइड 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 थ्योरम। ओके माय डियर स्टूडेंट, we have to follow बेसिक रूल्स रिलेटेड टू इक्वल एंड सिमिलर। इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना होगा, जब जाके हम बोल सकते हैं बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल एंड सिमिलर। जब दो ट्राइंगल इक्वल एंड सिमिलर होंगे मतलब उसकी हर एक चीज़ इक्वल, तो हम बोल देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ओके स्टूडेंट, नाउ वी टेकिंग द ट्राइंगल अपर ट्राइंगल, दैट मीन्स अ ट्राइंगल ADC, triangle ADC and triangle ABC, upper triangle and lower triangle. Student, we know that very well. This side will be equal of this side will be equal of this, and this is a common side. ध्यान से देखिए, AD will be equal of BC, मैंने नंबर 1 लिखा है, ठीक है। सेकेंड वन AB बेस एंड अपर रूफ BC इक्वल टू DC। रीजन लिखेंगे गिवन दैट एंड हियर ऑल्सो गिवन दैट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन एंड AC विल बी इक्वल ऑफ AC, दैट मीन्स अ common side. Student, in any triangle if three things are equal, statement 1, statement 2, statement 3, so we can say both triangles are equal and similar. You know that very well. किसी भी ट्राइंगल में तीन चीज़ बराबर है तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल एंड सिमिलर by using side sub theorem such that we can say angle B equal to angle D. Okay student, अगर जो हम इस डायगोनल को इधर स्क्रैच करते हैं तो वी गेटिंग एंगल A इक्वल टू एंगल C, मतलब सिमिलरली वी कैन से एंगल A will be equal of angle C, hence proved. Okay my dear student, फिर से एक बार देख लीजिए मुझे क्या दिया था। According to the statement of theorem number 8.5, first one, in a parallelogram opposite angles are equal. We have to prove in any parallelogram opposite angles are equal. That means given that ABCD is a parallelogram. What is the meaning of the parallelogram? Opposite sides are equal and parallel. Again, opposite sides are equal and parallel. Statement, we have to prove opposite angles are equal. That means A equal to C or B equal to D. Construction student, joint AC, हमको दो ट्राइंगल मिले, दोनों ट्राइंगल को हमने इक्वल एंड सिमिलर प्रूव करा बाय यूज ऑफ द साइड थ्योरम, सो वी कैन से ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ओके स्टूडेंट, now we taking the next theorem. The statement of the theorem, the diagonals of the parallelogram bisect each other. Rule number 1, read केयरफुली मैक्सिमम टाइम. जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहे थ्योरम के फॉर्म में तो उसको बार बार पढ़िए ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि सभी थ्योरम के स्टेटमेंट लगभग एक जैसे होते हैं. माय स्टूडेंट, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सेंटेंस स्टूडेंट? गिवन दैट पैरेललोग्राम, मुझे पैरेललोग्राम दिया है, फॉर एग्जाम्पल ABCD is the example of parallelogram. ABCD. Okay student,
and second one we have to prove bisect each other, that means this part will be equal of this and this part will be equal of this. Okay, क्या समझ आया स्टूडेंट? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. That means parallelogram is given and we have to prove diagonals bisect each other. Student, every theorem start with the statement. जब भी हम theorem को करेंगे तो we will start with the statement. क्या statement है? Statement always written under the inverted comma. सेकेंड वन गिवन दैट, धीरे धीरे समझेंगे तो हमको समझ आने लग जाएगा. हमको क्या दिया है? गिवन दैट क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम सच दैट. व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. दिस साइड पैरेलल टू दिस and this side parallel to this. Okay student, that means AD will be equal of BC and AD parallel to BC and AB parallel to DC, AB equal to DC and AB parallel to DC. बोलिए फिर से मेरे साथ एक बार. What is the main property of parallelogram? In the case of the parallelogram, opposite sides are equal and parallel to each other. We have to prove diagonal bisect each other. That means second point to prove. मुझे क्या प्रूव करना है स्टूडेंट? ध्यान से देखना. क्या प्रूव करना है स्टूडेंट? फर्स्ट वन, OD will be equal of OB and second one OA will be equal of OC. क्या बोला? फिर से बोलिए. ठीक है, diagonals bisect each other, that means this part will be equal of this and this part will be equal of this. Okay student, now we taking the next and most important part, proof. तो where is the construction? construction का मतलब क्या होता है? construction if you required then draw, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पॉइंट. तो अगर जो हम कंस्ट्रक्शन को स्किप कर दें तो हम आते हैं प्रूफ पे. वी यूज्ड एनी टू ट्राइंगल. ओके माय डियर स्टूडेंट, आप कोई से भी दो ट्राइंगल का यूज़ कर सकते हैं. चाहे ये दोनों ले लीजिए, चाहे ये दोनों ले लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू. तो हम हमारा थोड़ा सा बेनिफिट देखेंगे, हमको कौन से चाहिए. ठीक है, सभी में लगभग सेम बेनिफिट है. नाउ वी स्टडिंग. Now we take a triangle. In a triangle AOD and triangle BOC. ओके स्टूडेंट, हमने कौन से ट्राइंगल लिए हैं? ऑपोजिट ट्राइंगल्स. फर्स्ट वन ट्राइंगल AOC एंड सेकेंड ट्राइंगल BOC. ध्यान से देखना स्टूडेंट. By the property of the parallelogram, this is a alternate angle. This angle will be equal of this and second one this angle वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. फिर से बोलता हूँ स्टूडेंट, अगर जो कहीं पे भी दो लाइन पैरेलल है, फॉर एग्जांपल DC एंड AB पैरेलल टू ईच अदर एंड थर्ड लाइन इंटरसेक्ट देम, सो हियर एंगल विल बी इक्वल ऑफ अल्टरनेट एंगल. याद रहेगा, दिस प्रॉपर्टी आर नोन एज द अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी. एंड सेकेंड वन, व्हेन टू लाइन्स are bisect to each other, so this angle will be equal. अगर जो ये दोनों लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल. ओके स्टूडेंट. एंड थर्ड वन, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. फिर से देख रहा हूँ, एंगल वन, दिस एंगल विल बी इक्वल ऑफ दिस एंड सेकेंड वन, दिस एंगल विल बी इक्वल ऑफ दिस बाय प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंड दिस साइड विल बी इक्वल ऑफ दिस. ओके स्टूडेंट, मतलब मुझे कहीं ना कहीं कितने एंगल मिल रहे हैं? दो एंगल और एक साइड. तो दो एंगल और एक साइड को डिफाइन करने वाली कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड. तो अब आप समझिए. चलिए,
इस थ्योरम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका बेसिक है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मुझे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है स्टूडेंट, या तो मैं एंगल साइड प्रॉपर्टी का यूज़ करूँ, अदरवाइज वी हैव टू यूज़ एंगल साइड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होना चाहिए? सर ये जो साइड है, अगर जो ये इन दोनों एंगल के बीच पे डिफाइंड होती, ओके स्टूडेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर जो मैं इस वाले एंगल का यूज़ करता, अगर मैं इस एंगल का यूज़ करता, एंगल 1 एंड एंगल 2, तो ये साइड इन दोनों के बीच में होती, करेक्ट। तो मैं वहाँ पर एंगल साइड एंगल थ्योरम का यूज़ करता। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द एंगल साइड एंगल? यहाँ पर जो साइड है, साइड दैट मीन्स इंक्लूड साइड, जब दोनों एंगल के बीच में साइड हो, जब दोनों एंगल, सो स्टूडेंट अगर जो ये साइड दोनों एंगल के बीच में डिफाइंड है तो वी हैव टू यूज़ एंगल साइड एंगल थ्योरम। और अगर जो साइड जो है एंगल के बीच में नहीं है, ओके स्टूडेंट, जैसे हमने ये एंगल लिए हैं तो यहाँ पर जो साइड है वो आउट ऑफ एंगल है, तो हम कौन सी यूज़ करेंगे? एंगल साइड। इन दोनों में डाउट आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल क्लियर हो रहा है दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हेन साइड बिटवीन द एंगल्स वी यूज्ड एंगल साइड एंगल, एंड व्हेन साइड अ पार्ट ऑफ द एंगल वी यूज्ड एंगल साइड। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसा हमने यहाँ पे ले लिया है, एंगल 1 विल बी इक्वल ऑफ एंगल 1, बट कौन सा? अल्टरनेट एंगल्स, ओके स्टूडेंट। सेकेंड वन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल एंड थर्ड वन ऑपोजिट साइड। सो कौन सी थ्योरम यूज़ करना है? एंगल साइड। फर्स्ट वन एंगल DAO, एंगल DAO will be equal of OCB, angle OCB, and what is the name of this angle? Alternate opposite angle. Second student here DOA, angle DOA will be equal of BOC vertical opposite angle. Next one student, this side, that means AD will be equal of BC, AD will be equal of BC, that means यहाँ पर गिवन दैट भी लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं बाय यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम। स्टूडेंट बाय यूज ऑफ द स्टेटमेंट 1 2 3 we can write both triangle are equal and similar by using property angle side sub theorem. Okay student, such that by use of the statement of CPCT, क्या होता है CPCT? corresponding pair of the corresponding side, we can say इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देखिए OA will be equal of OC, OA will be equal of OC and OD will be equal of OD, OD will be equal of OB as proved. ओके स्टूडेंट, फिर से एक बार देखते हैं हमने क्या करा। हमको क्या करना था? द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, वी हैव टू prove the diagonal, that means OB will be equal of OD and OC will be equal of OA. स्टूडेंट क्या दिया है? quadrilateral ABCD is an example of parallelogram. That means opposite sides are equal and parallel to each other. Okay student, we have to prove OD equal to OB, OA equal to OC. हमने क्या करा? we select a triangle. कौन सा ट्राइंगल लिया? ठीक है, इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को हमने सिलेक्ट करा और इसमें तीन चीज़ें, फर्स्ट वन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 अल्टरनेट एंगल, सेकेंड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, थर्ड वन ऑपोजिट साइड. सो बाय यूज ऑफ angle side we can write both triangles are equal and similar. So by use of the CPCT we can write OA equal to OC and OD equal to OB. I hope student you getting the 110% solution related to theorem number 8.6. Thank you so much. This YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajada student.
Please like this video, share between the friends, subscribe our channel, and please study all subject from our channel. Thank you so much.